स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू इन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका गेट का पेपर। गेट के अंदर हम जो सॉइल मैकेनिक्स को आप डील करेंगे, सॉइल मैकेनिक्स जितने क्वेश्चन आए थे आपके उन सभी को हम आज सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे और किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, मॉर्निंग सेशन का ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट एक लिखिएगा, टू रिजर्वायर, ये क्वेश्चन था आपका। टू reservoir connected through aquifer, connected through aquifer having hydraulic conductivity, having hydraulic conductivity of 25 meter per day, 25 meter per day, and effective porosity जो गिवन है आपको, which is equal to 0.3. Now if water table in reservoir 1 is contaminated, then the time in days calculate करना, you can calculate the value of time in days taken by the contaminated water, to reach reservoir second. There are two reservoirs which is given in the question, and he said that if the water table in the reservoir 1 is contaminated, क्या कहना चाह रहे हैं, if the water table in reservoir 1 is contaminated, then how much time it is required, how much time is required in days taken by the contaminated water to reach reservoir 2. reservoir 1 से reservoir 2 के पास आपको वाटर को क्या करना है, फ्लो कराना है, तो हाउ मेनी डेज इट विल टेक, टाइम इन डेज कैलकुलेट करना है। एंड इन क्वेश्चन you will give the conductivity, hydraulic conductivity is 25 meter per day, means permeability, and effective porosity n is equals to 0.3. and it he also given the diagram. Diagram देखिएगा यहाँ पे, here it is the aquiclude, then after some time there is an aquifer. These are the geological formations of the earth, and now this is a porous or impermeable which is known as aquifuge. Either we can say it is rock, aquifuge, we can say rock. From the datum, this is your datum, from datum the level of water from the datum, the level of water this is the level of water is 30 meter, and at the inlet and at the other end it is at that level, and this level is, then the height of the water is 10 meter. Then first of all, and the length of the aquiclude is given as 2 kilometer. 2 kilometer length is given, and here K is also given and permeability is also given, and this is your datum. With respect to datum, we can measure the level of the water. This is the level of water. Now first of all we calculate the
seepage or discharge velocity. With the help of the seepage and discharge velocity, we can calculate the time required to reach the water from the first reservoir to the second reservoir. First से second में जाने में कितना time लगेगा ये हमें calculate करना है. This is your, we can say this is your first reservoir and reaches to second reservoir in how much time, and the unit will be in days. Days के अंदर आपको calculate करना है. तो चलें आगे. ये question था आपका, and this is your diagram. First of all, we can use the formula, and the formula is that, or we can write some given data. और वैसे लिखने की जरूरत है नहीं गिवन डाटा, बिकॉज सब कुछ गिवन है आपको. लेंथ यहाँ पे गिवन है, और हेड लॉस वी कैन कैलकुलेट हेड लॉस. हेड लॉस क्या हो जाएगा यहाँ से आपका हेड लॉस क्या हो जाएगा? हेड लॉस इज द 30 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 20 मीटर. हेड लॉस इज 20 मीटर. देन length of the drainage path we can say 2 kilometer, which we can convert it into meter, to 2000 meter. Done? Clear? Then first of all we can apply the formula, and the formula is of seepage velocity. Seepage velocity, we know that seepage velocity Vs is equals to V by N. Vs is equals to V by N. Here V is the seepage velocity and V is the flow velocity and N is the porosity. And here V we can write according to the Darcy law. According to Darcy law, we can say V is directly proportional to I, or we can write V is equals to Ki. So we can put in terms V is equals to Ki. So here Vs is equals to Ki by N. N here is the porosity. तो हम क्या करने वाले हैं? हम 0.25 और what data it is given? It is 25, not 0.2, 25 meter per day. ठीक है, तो 25 meter per day into hydraulic gradient. Hydraulic gradient is I, head loss per unit length. Yeah, HL we can write del H, or we can say HL. Here H head loss per unit length. Head loss is 20 and length is 2000. So we can write 20 by 2000. Done. Divided by the porosity. Porosity which is given in the question is, how much porosity given? 0.3. It is 0.3. So right, it is 0.3. The value of seepage velocity comes out by using this equation is 0.833. Vs equals to 0.833 मीटर पर डे. तो यहाँ से हमारी सीपेज वेलोसिटी कैलकुलेट होके आई और इट इज 0.833 मीटर पर डे. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लो वेलोसिटी, और वी कैन से डिस्चार्ज वेलोसिटी. ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लो वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी. और सीपेज वेलोसिटी अगर बात करें तो Vs इक्वल्स टू क्या हो सकता है? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है सर स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम. मीटर पर सेकंड यूनिट जो होती है वेलोसिटी की, इट इज मीटर पर सेकंड. ठीक है, मीटर पर सेकंड. ये हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मीटर पर सेकंड डिस्टेंस हमारे के पास है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, और सीपेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. देन वी कैन से डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज द सीपेज वेलोसिटी, एंड हियर टाइम इज इक्वल टू d by Vs, and distance is 2000 meter. ठीक, and velocity is 0.833 meter per day. मीटर पर डे. तो डे आपका दिस इज कैंसल, एंड द वैल्यू इन डेज, हाउ मच डेज इट इज कम आउट? 2400.96 आ रहा है. तो वी कैन राउंड आउट इट टू 2400 डेज. कितना टाइम लगेगा इसको रीच करने में रिजर्वायर 1 से रिजर्वायर 2 तक? सर 2400 डेज आर रिक्वायर्ड टू रीच द कंटेमिनेटेड वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर 1 टू द रिजर्वायर 2. डन. ओके, नाउ next question regarding to the soil mechanics is, write down. Next question, question number 2. Write down a partially saturated soil. A partially saturated soil
sample has natural water content which is given as content is W is equal to 25% and bulk unit weight gamma B is also given in the question 18.5 kilonewton per meter cube. Theoretical specific gravity which is given as G is equals to 2.65 and take unit weight of water gamma W is 9.81 kilonewton per meter cube. कितना देना है? 9.81 kilonewton per meter cube. And you have to calculate the saturated unit weight. Saturated unit weight of soil at fully saturated will be saturation will be. तो यहाँ पे ऑप्शंस भी हमारे पास आए थे. ऑप्शंस था आपका 20.12, देन ऑप्शन नंबर बी इज 19.03, ऑप्शन सी इज 21.12 एंड ऑप्शन डी इज 18.50. दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है? अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हुज वाटर कंटेंट इज 25%. वाटर कंटेंट कितना गिवन है? 25% एंड द बल्क यूनिट वेट गामा बी व्हिच इज गिवन एज 18 kilonewton per meter cube. Now the theoretical specific gravity is also given as 2.65 and you can take the unit weight of water as 9.81. You can calculate the saturated unit weight of the fully saturation here as take S is equals to 1. You can take for fully saturation S is equals to 1. So first of all, if we are applying the formula of gamma saturation, G plus SE gamma W upon में 1 plus E, or we can apply the formula G 1 plus W gamma W upon में 1 plus E. जब दोनों फॉर्मूले की बात करते हैं तो पहली बात तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा और ये फॉर्मूला भी नहीं लग पाएगा. कब तक? जब तक कि हमें यहाँ पे इस वॉइड रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट ना हो. जब तक हम इस वॉइड रेशियो को फाइंड आउट नहीं कर ले, एस तो हम 1 ले लेंगे बट वॉइड रेशियो हमारे पास नहीं है. तो वहां पे हमें वो गिवन है गामा बी. गामा बी इज द बल्क यूनिट वेट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो फर्स्ट स्टेप इज गामा बी इज इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई. द वैल्यू ऑफ बल्क यूनिट वेट इज 18.5. हियर gamma B is 18.5, G 2.65, unit weight is given as 9.81 upon में 1 plus E. Here E is equal to, E कितना कैलकुलेट हो गया है बताइएगा? E is equal to 0.7565. It is 0.7565. Done. यहाँ से हमने void ratio कैलकुलेट कर दिया. Now we can use this void ratio in gamma saturated formula. We can use this void ratio in gamma saturated formula. The next step is that gamma sat is equals to G plus S की हो जाएगा वैल्यू आपकी 1 सैचुरेशन के अंदर S E अपॉन में 1 प्लस E into gamma W. This formula we can apply. तो G is 2.65, 1 into E. E कितना हो गया आपका? 0.7565 डिवाइडेड बाय
1 plus 0.7565 multiplied by unit weight is 9.81, then we can find out the value of gamma saturated. We can find out the value of gamma saturated. तो बताइएगा कितना आंसर आएगा यहाँ से? 19.03 आएगा. It is 19.03 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. The option is option number B will be the correct answer. Option B will be the correct answer. Done? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉइल मैकेनिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स. द क्वेश्चन इज दैट, राइट डाउन द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. द कोहेजन comma the angle of internal friction which is known as phi, angle of internal friction, and unit weight is given in the question, and unit weight of a soil are 15 kilopascal, comma 20 degree is the angle of internal friction, and 17.5 kilonewton per meter cube is the unit weight of the soil. You can calculate the maximum depth of unsupported cut. या unsupported लिखा है यहाँ पे excavation, unsupported excavation in the soil. So first of all we can apply the formula of HC. First of all we can apply the formula HC. First of all we can apply the formula SC. SC का फॉर्मूला क्या होगा? 4C अपॉन में गामा अंडर रूट KA. Formula for maximum depth of unsupported cut is 4C upon में gamma under root Ka. Here Ka is the active coefficient of active earth pressure. It is the coefficient of active earth pressure. It is the coefficient of active earth pressure. The formula of Ka is 1 minus sin phi upon में 1 plus sin phi. You can put the value of phi, angle of internal friction, in this question. 1 minus sin 20 degree upon में 1 plus sin 20 degree. The value of K comes out how much? The value of K will comes out how much? It is 0.4903. It is 0.4903. Done? Put this value in this equation or in this formula. 4C cohesion is given as 15 kilopascal. C, here the value of C is 15 kilopascal upon में gamma. Unit weight of the soil is 17.5 under root Ka. Ka is the active earth pressure coefficient, which is calculated as 0.4903. The value of the maximum depth of unsupported cut will be equal to 4.89 meter. 4.89 meter, or we can say it is 4.90 meter. This is your third question of soil mechanics. Done? So hello students, once again welcome you in Nimbus Learning powered by Engineers Academy. तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका मॉर्निंग सेशन गेट 2020 का सॉल्यूशन. देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? डायरेक्ट शेयर टेस्ट से आपका ग्राफ पूछा गया था कि ग्राफ किसके बीच में? चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू शेयर स्ट्रेन. तो उसमें कई सारे ग्राफ होते हैं. वॉइड रेशियो वर्सेस शेयर स्ट्रेन भी होता है, ठीक है. पोर प्रेशर वर्सेस शेयर स्ट्रेन भी होता है, शेयर स्ट्रेस वर्सेस शेयर स्ट्रेन भी होता है. तो उसी में से एक ग्राफ है आपका चेंज इन वॉल्यूम वर्सेस शेयर स्ट्रेन. उसमें दो रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो डेंस सॉइल और एक लूज सॉइल. तो यहाँ पे बोल रहा है कि ग्राफ किसका होगा. तो यहाँ पे एक कर्व दे रखा है P का और एक Q का. तो ये आपको क्या दिख रहा है कि लूज सॉइल के अंदर with respect to shear strain or with applying load, the rate of volume changes decrease होती है. रेट आपकी वॉल्यूम की डिक्रीज होती रहती है. बट इन डेंस सॉइल रेट जो है आपकी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बट एट अ सर्टेन पॉइंट क्या होगा? ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है. बॉन्ड की जो पार्टिकल के बीच में इंटरलॉकिंग है, इसके ब्रेक होने से
दिया क्या करता है, अगेन द वॉल्यूम क्या करता है आपका, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे पूछा है कि पी एंड क्यू ग्राफ किसका है, देन द पी इज द डेंस ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, डेंस सॉइल होगी तो इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट इंटरलॉकिंग विल बी ब्रेक। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं अब यहाँ पे, एट दिस पॉइंट interlocking between the soil molecule will breaks. So for due to this breaking of interlocking, the graph will be increases and the change in volume is also increases. तो इंटरलॉकिंग के ब्रेक होने से क्या होता है, ये ग्राफ अपर डायरेक्शन की तरफ मूव करता है और इसमें सडन क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता रहता है क्योंकि ये लूज सॉइल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पी आंसर है आपका, पी इज अ डेंस ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल एंड क्यू इज अ लूज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। तो पी जो ग्राफ है वो डेंस सॉइल का और क्यू ग्राफ जो है आपका लूज सॉइल का है। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट saturated soil sample initially acted upon by an effective pressure of, effective pressure कितना लग रहा है उस soil mass पे, 50 किलो पास्कल is applying, which was in equilibrium. After this suddenly the applied stress increases. Now the applied stress will be increases. applied stress के increase करने से, applied stress के increase करने पर कितना increase कर दिया, 150, from 50 to 150. What is the effective stress and pore water pressure? तो effective stress calculate करना है, the value of the effective stress and also calculate the pore water pressure in the soil mass. तो देखिएगा, तो stress जो होता है, stress में क्या हो रहा है, the stress increases suddenly, stress suddenly increase कर रहा है, तो stress कौन bear करेगा, ये directly bear करेगा आपका pore water pressure। तो चेंज जो दिखेगा वो आपको किसको दिखेगा, पोर वाटर प्रेशर में। तो कितना था, 50 था, कितना हो गया, इट इज 150, द डिफरेंस इज 100 किलो पास्कल। तो 100 किलो पास्कल इज द स्ट्रेस इंक्रीजेस सडनली ड्यू टू दिस स्ट्रेस, इट इज टेकन बाय द पोर वाटर प्रेशर। तो डेल यू कितना हो गया, 100 हो गया चेंज इन स्ट्रेस, और सो नो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज नहीं होगा, क्या हो रहा है, सडन के केस में, इन केस ऑफ stress increases suddenly, it is taken by only the pore water pressure, the effective stress remains constant, it is equal to 50 kilo pascal. The effective stress कितना होगा, 50 kilo pascal and the pore water is 100 kilo pascal चलेगा। Then next question is for which of the following statement is true? चार आपको दे रखे हैं, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा है, एनवायरमेंट से 4 पॉइंट्स आपको दे रखे, पूछ रहा है which of the statement is true, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है ये हमें बताना है। क्लियर हुआ, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कंबशन हुआ, पायरोलिसिस हुआ, आपका बार्गेन इनटू सी हुआ, ऑटोक्लेविंग हुआ, सैनिटरी लैंड फिलिंग हुआ, ये सभी क्या है, दिस ऑल आर दी डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को डिकम्पोज करने के मेथड है। तो यहाँ पे केवल आपको कंपेयर कर रहा है कंबशन और पायरोलिसिस, ठीक है। तो कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन जो होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं उस वेस्ट को बर्न करते हैं, और पायरोलिसिस का मतलब होता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी कैन से इट इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। पायरोलिसिस का एग्जांपल अगर बात करें तो क्या होता है, चारकोल हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पायरोलिसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस विच अकर्स इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर होती है विच अकर्स इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैसी होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक ये तो ये कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। पायरोलिसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, ताकि हम इसको यूज कर सके इन फ्यूचर एज अ टाइप ऑफ अ फ्यूल, फ्यूल के टाइप में यूज कर सके। तो स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, सी ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट अगेन इट इज फ्रॉम द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, which is liquid form of air pollutant. Air pollutant है आपके, air pollutant these are the primary and secondary pollutant। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा air pollutant liquid form में होता है, mist, spray, smoke, mist, smoke and dust। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक सभी से बन गया होगा कि लिक्विड फॉर्म में क्या होगा सर, स्प्रे और मिस्ट जो होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म। चलिएगा, गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि सॉइल में भी आता है और ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट में भी आता है, वेल हाइड्रोलिक से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और कन्फाइंड या अनकन्फाइंड एक्वीफर की कहानी है। अ ट्यूबवेल इज 20 सेंटीमीटर डाया, एक ट्यूबवेल है जिसका डायामीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर डाया है, इज फुली पेनिट्रेट इन अ होमोजीनियस आइसोट्रोपिक कन्फाइंड एक्वीफर। यहाँ पे देखिए, देखो कन्फाइंड एक्वीफर, तो हमें क्या करना है, कन्फाइंड एक्वीफर का फॉर्मूला लगाना है। अगर
यहाँ पे नहीं भी देता तो आगे उसने एक और क्लू दे रखा है, ऑफ इनफाइनाइटली होमोजेनियस एक्सटेंट एक्वीफर इज 30 मीटर यूनिफॉर्म थिकनेस। थिकनेस दे दी एक्वीफर की, जब थिकनेस गिवन होती है तो हमें कहाँ लगाना होता है, कन्फाइंड एक्वीफर, क्योंकि कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है, दो किसी इम्परमिएबल लेयर के बीच से वाटर को ड्रेन आउट करना, कुछ इस तरह का डायग्राम है। और ये थिकनेस आपको दे रखी है 30 मीटर और डायामीटर जो आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 हो गया। और ये तो हो गया डायमीटर। रेडियस अगर करोगे तो रेडियस कितना हो जाएगी मेन वेल की, इट इज 0.1 मीटर। डन, इट इज द रेडियस ऑफ द मेन वेल। आगे चलिएगा, एसटीडी पंपिंग रेट ऑफ, यहां से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को पंप आउट कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट पंपिंग रेट ऑफ 40 लीटर पर सेकेंड फ्रॉम द वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम रिजल्ट्स द एसटीडी ड्रॉडाउन। एस ड्रॉडाउन जो कितना है इसको बोलते हैं एस, एस कितना है और दिस इज योर क्यू, ठीक है। तो 4 मीटर आपका ड्रॉडाउन है। ड्रॉडाउन मतलब वाटर टेबल के अंदर कमी आना, वाटर टेबल के लेवल के अंदर कमी आना, कुछ इस तरह से डायग्राम बना और दिस इज योर एस, ये आपका एस है, एस इज द ड्रॉडाउन at the well face. The subsurface flow to the well pumping is steady horizontal R. R is the radius of influence, जहां पे water table क्या करेगी, मीट करेगी, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द इन्फ्लुएंस R। और ये R कितना दे रखा है 245 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मतलब आपको परमिएबिलिटी कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ मीटर पर डे। यूनिट क्या होगी, मीटर पर डे अप टू 2 डेसिमल प्लेस। सबसे पहले कन्फाइंड एक्वीफर और दूसरा फॉर्मूला कौन सा, थीम्स या डुपिट, सर डुपिट। व्हाई वी विल अप्लाइंग डुपिट, बिकॉज नो ऑब्जर्वेशन वेल आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। अगर ऑब्जर्वेशन वेल गिवन होता तो हम बोलते हैं थीम्स थ्योरी लगती है और 2 ऑब्जर्वेशन वेल लेते हैं, बट यहाँ पे हमारे को ऑब्जर्वेशन वेल गिवन नहीं है, केवल क्या गिवन है, मेन वेल के कोरस्पोंडिंग रीडिंग लेते हैं। तो ये किसने किया था, डुपिट्स ने दिया था। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिएगा, ये आपके सामने फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बाय अप्लाइंग डुपिट्स थ्योरी। डुपिट्स थ्योरी आपको अप्लाई करनी है और वो किसके अंदर, इन कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर के डुपिट्स थ्योरी अप्लाई करनी है। 2 पाई KB H कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइड बाय 2.303 log बेस 10 कैपिटल R बाय स्मॉल r, या ln की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो कैपिटल H क्या है, इज द हेड ऑफ द वाटर अवेलेबल और स्मॉल h इज द हेड ऑफ द वाटर अवेलेबल इन द मेन वेल। ये होता है बेटा आपका H, ये होता है आपका स्मॉल h, ये टोटल हेड जो होता है इसको बोलते हैं H, ठीक है। बट यहाँ पे ड्रॉडाउन दे दिया मतलब H माइनस H की आपको वैल्यू दे रखी है। H माइनस H की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है, तो यहाँ पे 4 पुट कर दिया। B इज द थिकनेस ऑफ द एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर इज 30 पुट कर दिया। K तो कैलकुलेट करना है आपको और 2 पाई, पाई के लिए 3.14। यहाँ पे देखिए 40 लीटर पर सेकंड दे रखा था, वहां पे 40 लीटर पर सेकंड दे रखा है। तो इस लीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करके हमने यहाँ पे लिख दिया, लीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करके हमने लिख दिया किसके अंदर, मीटर के अंदर। मीटर के अंदर कन्वर्ट करते ही 40 डिवाइडेड बाय हमने ये हो गया, तो कितना हो गया 40 इंटू 10 टू द पावर -3 इन मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड में हो गया ये आपका कन्वर्जन। अब 2.303 log बेस 10 कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, वो कितना है 245 एंड R इज द रेडियस ऑफ द मेन वेल। मेन वेल की रेडियस 20 सेंटीमीटर दी तो 0.2 मीटर तो हो गया डायमीटर और 0.1 हो गया इसकी रेडियस, तो आप 0.1 मीटर पुट कर दिया। तो यहाँ से जो आंसर मिला इट इज 4.142 × 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। पर क्वेश्चन के अंदर यूनिट जो बोली है वो किसके अंदर पूछी है, इन मीटर पर डे के अंदर। तो उसको डिवाइड कर दीजिएगा और उसको कन्वर्ट करके कितना आंसर आ गया 35.78। कितना आ गया आपका आंसर 35.78, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इफ NH4 प्लस कंसंट्रेशन एंड NH3 these are present in a certain concentration, कि NH3 और NH4 आपके प्रेजेंट है किसी एक certain concentration के अंदर, और यहाँ बोल रहा है if the pH is 7, if the pH is 7 then the concentration of NH4 and NH3 are the same। क्या अगर pH आपका 7 होगा तो NH4 और NH3 की concentration सेम होगी, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। नेक्स्ट, इफ द pH इक्वल टू 7 देन NH3 डोमिनेट, अगर pH अगर 7 होगा तो डोमिनेट कौन करेगा ज्यादा, सर वो NH3 करेगा, अमोनिया नहीं करेगा सर। तो इफ द pH इज बिलो 9.2 देन MH4 इज डोमिनेंट। बिल्कुल, अगर pH आपका 9.25 से कम होता है तो हम क्या कहते हैं सर, हम कहते हैं देन NH4 इज डोमिनेंट फैक्टर उसके अंदर। क्लियर हुआ, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसमें ग्राफ बनता है NH3 एंड NH4 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, आपने पढ़ा होगा रेगुलर क्लास के अंदर। फिर अपन आते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन के 50 आपके वोलेटाइल सॉलिड्स को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन था कि 50 ml सैंपल था
और उसको हमने देखा कि एम्प्टी वेट जो है आपका क्रूसिबल का, क्रूसिबल जिसके अंदर हम सैंपल को लेते हैं, एक जब आपने फर्नेसेस देखी होगी, मफल फर्नेस देखी होगी, सैंड बाथ फर्नेस देखी होगी, तो वहां पे क्या होता है, एक पॉट होता है, उस पॉट को बोलते हैं क्रूसिबल। तो क्रूसिबल का एम्प्टी वेट जो है वो है 543 है, 543 है ना, 54.354 नॉट 54.352 इस ग्राम, ये वेट ऑफ द क्रूसिबल है। आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस, तो वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस रेसिड्यू, हमने क्या किया, उसको टेम्परेचर दिया, राइज किया उसको अंदर आपके क्रूसिबल को, और यहाँ पे कितना हो गया 55.129। तो वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस रेसिड्यू, इसका रेसिड्यू का वेट, ये केवल क्रूसिबल का था, क्रूसिबल प्लस रेसिड्यू का वेट क्या होगा 55.129 हो गया। देन आफ्टर 600 डिग्री सेल्सियस, अब हमने क्या किया, उसको हीट दिया। पहले तो हम क्या बोल रहे हैं कि एम्प्टी वेट तो है ही है क्रूसिबल का, प्लस का रेसिड्यू का वेट कितना है, उनका सम करके लगा तो 55.129 हुआ। अब हमने उसको हीट किया 600 डिग्री सेल्सियस पे। इतना हाई टेम्परेचर जब हीट करा और किसके अंदर प्लेस किया, उस क्रूसिबल को मफल फर्नेस के अंदर, देन वेट ऑफ द क्रूसिबल प्लस रेसिड्यू, तो क्रूसिबल और उसके अंदर रेसिड्यू, उसका वेट कितना होगा 54.783। मतलब क्या हुआ, हाई टेम्परेचर बर्न करने से जो वॉलेटाइल सॉलिड्स थे वो क्या होगा, रिमूव होगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो थे जो कि डिकम्पोज हो गए, तो वहां पे क्या हो गया 54.783, वेट कम हो गया। तो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ वॉलेटाइल सॉलिड्स, तो बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वॉलेटाइल सॉलिड्स इन, ये बात ध्यान करने की कि इन मिलीग्राम पर लीटर बोला है, ठीक है, किसमें बात कर रहा है, मिलीग्राम पर लीटर। तो वॉलेटाइल सॉलिड्स कितने हो गए 55.129 तो थे, रेसिड्यू प्लस क्रूसिबल, फिर जब उसको 600 डिग्री पे मफल फड़ने के समय बर्न किया तो कितना होगा 54.783। तो कितने वॉलेटाइल सॉलिड्स से जो रिमूव हो गए हाई टेम्परेचर पे, सर वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना हुआ 0.346 ग्राम, वो कितने इन 50 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, 50 ml के अंदर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर है। अब पूछ रहा है मिलीग्राम पर लीटर में कितना होगा, तो सबसे पहले तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करते 0.346 था तो कितना होगा 346 मिलीग्राम हो गया। अब ये 50 ml है, 50 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे सर, अगेन इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, डिवाइड बाय 1000 करते ही 0.05 आ जाएगा, 50 डिवाइड बाय 1000 0.05। तो मिलीग्राम पर लीटर के अंदर वैल्यू कन्वर्ट कर दी, क्योंकि पूछा भी मिलीग्राम पर लीटर के अंदर ही है। तो 6920 मिलीग्राम पर लीटर वॉलेटाइल सॉलिड्स आपके कैलकुलेट हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.